What used to happen in college? There was just one company which came, which was related to cyber. Otherwise, all of them are like general, like TCS, Cognizant, and all that shit. So I was thinking कि अगर उसमें हो जाएगा तो that would be a good start. Right? You don't have to go ahead and look for yourself कि क्या करना क्या नहीं करना. जब उसने reject कर दिया तो उसने ठीक है तुम्हारा घाटा मेरा क्या. इसमें तेरा घाटा मेरा नहीं जाता. अरे कृतिका उस कंपनी का नाम भी बता दो. Thank you so much for all the love and feedback you have been sharing with me, and based on that I have started this new series which is called Behind the Cubicles under the section Gupshup, जहाँ पे मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को लेकर आऊँगा जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में होंगे एंड उनकी लाइफ के बारे में, उनके करियर चॉइसेस से रिलेटेड डिस्कशंस हम लोग करेंगे एंड देखेंगे कि आर दे हैप्पी, इज देयर समथिंग जो कि उनको डिफरेंटली करना चाहिए था, एंड उनकी तरफ से कुछ सजेशंस एंड टिप्स अगर कोई नया अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए. एंड हम लोग उनके साथ थोड़े से गेम्स खेलेंगे जो कि नॉट जस्ट द गेम्स होंगे बट एक्चुअली इट विल बी इंफॉर्मेटिव, कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई कॉन्टेंट अराउंड दिस कि हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिले और बोरिंग भी ना हो, कुछ नया देखने को और सीखने को मिले. सो ऑल अराउंड दैट, इफ यू लाइक दोज टाइप ऑफ कंटेंट, do stay tuned. This is the first episode wherein I'm bringing 3 of my friends which are also called frenemies and they are from the cyber security industries. I'm choosing cyber security क्योंकि ये मेरी खुद की personal industries है. I can share a lot of feedback from my side as well. So these 3 friends along with me are going to have some crazy shit talks here and I do think that you will enjoy it. So do stay tuned for the first part and let me know what your feedbacks are in the comment sections below. Thank you. Welcome. Thank you for joining and accepting my invite to be a part of this first show of my new series. बहुत बहुत शुक्रिया. हिंदी में बोलें तो तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ अमित, कृतिका और मनप्रीत से. मैं इंट्रोड्यूस करूँ, मैं अपने शब्द यूज करूँ उससे पहले आई थिंक आप लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने आप को. सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, मनप्रीत. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी. It should be a candidate. It should be handsome rather than a beautiful. No, I know. क्या मेरे को क्या यूज करना था? Handsome. When I'll introduce handsome, I'll definitely use Kritika. हाँ तो मनप्रीत, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है, क्यों करी तूने? It just happened. मतलब दोस्त ने काफी जान खा रखी थी, मतलब इतने मैसेजेस, इतने कॉल और so many गाली also, तो BKMC and all. So I had to join this. I mean, and moreover, कृतिका के साथ स्क्रीन शेयर करने का मैं मौका नहीं छोड़ सकता था. So हम गए. वाह. It's all about Kritika. Very nice. Thanks for being honest about it. Kritika, I think you can hear him. And more, you can see him. I guess we should talk after this, session. What do you say? पहली फुर्सत में निकाल. I have a date to go to. Sorry. Okay, Manpreet, so very briefly, can you give a background? नहीं. आप कहाँ से हैं, कहाँ से स्कूलिंग, कॉलेज और कौन सा अपने स्टडीज का बैकग्राउंड एक बार.
So basically, I'm from India, Uttar Pradesh, and मैंने अपनी schooling एक boarding school में majorly की. So team was Johannoday Vidyalaya. So after that boarding, I dropped 1 year to get selected into these college of India, which are known to be government colleges like IIT, NIT or something like that. So मैंने एक साल drop किया, मैंने coaching ली. Then after I got कोचिंग कहाँ से करी? कोटा से? rank. नहीं, मैंने लखनऊ से ही drop किया था. लखनऊ से? तो मैंने ड्रॉप किया वहाँ पे और आई गॉट सिलेक्टेड. उसके बाद मेरी काउंसलिंग हुई एंड आई गॉट इनटू NIT मिजोरम. NIT से? सो ओह माय गॉड, यस. ये पढ़ने So why you are shocked? Nobody expected that one. हाँ. So हाँ, तो NIT मिजोरम से कॉलेज किया. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रीम थी. एंड आफ्टर दैट साइबर सिक्योरिटी हैपेंड एंड आई एम हियर विद यू गाइस. For giving an idea. So मतलब अब हम बता सकते हैं कि शक्ल पे मत जाओ. शक्ल के मनप्रीत की शक्ल देख के लगता नहीं वो NIT से पास आउट है, बट you know now. Okay, so as I said, we from beautiful person on the show, let's move to the handsome one. Kritika, let's hear from you, your story. Yeah, did you just call me handsome? Definite. Okay, thank you. Better. No better. No better, no, looks better. It's better though. Look at this. Let's start with your introduction now. You're justifying your adjective. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. No, I'll choose not to respond to that. Okay. So, मैं जयपुर से हूँ. पिंक सिटी. हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है? हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मन करे, साथ में मिक्स करके बोलिए. आपका ओ भाई साहब. हाँ, तो मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से, और बहुत सारी स्कूलों में पढ़ी हूँ. सबसे बाहर निकाल देते थे मुझे, तो somehow managed to graduate. ठीक है, पास हो गए. उसके बाद में कॉलेज RTU से इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. देन साइबर सिक्योरिटी में जॉब चल रही है, somehow मिल गई. ठीक है, कर रहे हैं. So you also electronic and communication. सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं क्या? मैं पूछ के बताऊंगी सबसे. भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो. नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. Okay, thanks. I'll get back to you. So अमित है हमारे साथ. अमित, प्लीज अबाउट योरसेल्फ. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा. बेसिकली मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ. एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी आई शुड कॉल इट प्रयागराज. Yes. The name has changed. Yes. So basically मेरी एजुकेशन इलाहाबाद से हुई है. मैंने अपने स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारे इलाहाबाद से किए. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन SIT कॉलेज से किया हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से. उसके बाद मैंने IIIT से MS किया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ से. 2015 में ग्रेजुएट होने के बाद 2-3 जॉब की. उसके बाद फाइनली डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लास्ट 4 ईयर से काम कर रहा हूँ. नाइस. तो मतलब हम सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अमित ही है. Should I call it Allahabad or should I call it Allahabad? You should call it Prayagraj. It belongs from the yogis. Call it Prayagraj. प्रयागराज. अपना नाम चेंज करना है तो. अमित भाई, अभी अपना नाम जो चेंज करने नहीं सोच रहे हो? चले यूपी जवाहर से आज अमित को कहेंगे. वो योगी साहब पे डिपेंड करता है. वो कुछ भी कर सकते हैं. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. नो पॉलिटिकल व्यूज प्लीज. तो फॉर मी, मेरा इंट्रोडक्शन मोस्टली सब लोग जानते हैं, जस्ट बट टू गिव एन आइडिया.
किसने मैं मांगा? You don't want to know. It's for my subscribers, you know. Nation wants to know. Nation wants to know. Nation wants to know. A lot of Seriously, not this one. Seriously, not this one. Not this one. Actually, मेरे को बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. I didn't have NIT ना IIT है. कुछ भी नहीं है मेरे पास. मेरे पास है SKIT. तेरे पास मारवाड़ी दिमाग है. मारवाड़ी दिमाग. तेरे पास है मारवाड़ी दिमाग. Marwadi Dimag, yes, that's something which I have. So I've been born and brought up in Kota राजस्थान में, और मेरा स्कूलिंग पूरा कोटा में हुआ. वहाँ पे 2 साल मैंने IIT और AIEEE की कोचिंग भी करी, बट हुआ नहीं, वो सबको ही पता है. अब तक अगर क्लियर नहीं हो तो मेरी शक्ल देख के बता सकता नहीं हुआ, ठीक है. फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करा स्टेट लेवल, वो जयपुर से था SKIT, और तब मेरी ब्रांच पहले कंप्यूटर साइंस थी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गई वापस से. हाँ, लास्ट में वापस से आई डोंट नो समहाउ हो गई. एंड देन तभी मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था शुरू से ही, और मेरा जब से इंटरेस्ट था तो जब से करियर की स्टार्टिंग भी साइबर सिक्योरिटी से हुई. और तुम दोनों को शायद से पता नहीं हो, बट मैंने तो साथ में काम भी करा है अफ्रीका में. तो हम लोग साथ में काम करते थे अफ्रीका में, और वहाँ पहली बार मिले थे और तब से काम करने साथ. सो ये मेरा कौन से काम? I'll get back to you. I'll get back to you this offline. Okay. For that. Okay, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं खुद से भी पूछता हूँ और तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, साइंस मैथ्स क्यों ली? Why not something else? कॉमर्स क्यों नहीं? आर्ट्स क्यों नहीं? मैं अपने ऑपरेशन करने के तरीकों पे पूरा विश्वास था, इसलिए बायो नहीं ली. बात कर, मेरे को जानता नहीं है यार. मेरे तो मतलब ऐसा था कि सोसाइटी प्रेशर में ऐसा था, लड़का थोड़ा बहुत पढ़ने वाला लिखने वाला है तो साइंस दिलवा दो. पढ़ने वाला I always had this in mind कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, तो I should take science rather than arts or commerce. So as a society, and kind of yes, it was a decision of a stereotype which I had all around. So technically you want to say arts वाले बेवकूफ हैं? नहीं, I don't want to point this out. This is a stereotype. Society is saying that. Kritika, it's always, even now since being so much time into the industry, we know that कि हम technical person के ऊपर हमेशा commerce और arts वाले हमेशा gonna rule us all the time. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? On record, I'm not agreeing with this guy. Okay. So Kritika, what was your reason of choosing engineering or science maths? See, मुझे तो संस्कृत लेनी थी. Hats off to you, Kritika. हाँ, तो मुझे संस्कृत लेनी थी. ऐसे ही ठीक है, संस्कृत पता था कि मोदी जी आने वाले हैं. It's getting too much political here. तुम रहने दो लड़की, तुमसे कोई पढ़ लो. क्या? उत्तर प्रदेश के 2 लोग रहेंगे तो पॉलिटिक्स भी नहीं आएगी क्या? And we are not talking. We are not talking. हाँ. हम ही तो सबसे पहले नपेंगे. सबसे पहले. हाँ, तो व्हाट्स द रामो रामाभ्याम? क्या रीजन था संस्कृत सोचने का? बट फिर फीस पापा को भरनी होती है, तो पापा ने कहा साइंस मैथ्स लो, तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब जो पढ़ा दो वही ठीक. तो संस्कृत में फीस नहीं लगती थी क्या, या ज्यादा लगती थी? नहीं, तो जब पैसे जो इंसान दे रहा है उसकी मर्जी चलेगी ना. क्लाइंट ने बोला ये करके दो तो वैसे ही करके देना पड़ेगा ना. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी क्लाइंट दे रहा है तो ऐसा. क्लाइंट तो बहुत कुछ बोलता है कृतिका. नाइस. मंत्री गुड. अच्छा मत दिखा कर, तू थोड़ा कम ब्यूटीफाई थोड़ा कम करो. अमित, व्हाट वाज योर रीजन? ऑपरेशन करने में पता था मैं किसी को मार दूंगा, इसलिए बायो नहीं ली. बचा मेरे पास ऑप्शन मैथ्स और साइंस का. संस्कृत मुझे पढ़नी नहीं आती थी, आर्ट्स मेरे अच्छे थे नहीं,
एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास साइंस ही बचा, साइंस मैथ। और सबसे अच्छी बात तो ये, पहले हमें आर्ट्स लगता था कि फाइन आर्ट्स है, कि हमें आर्ट्स बनाना पड़ेगा। तो हमें आर्ट्स, हाँ, तो हमें पता नहीं था आर्ट्स में इकोनॉमिक्स एंड पता नहीं क्या व्हाटएवर सब्जेक्ट जो भी है पढ़ने पड़ेंगे। तब उस टाइम अवेयरनेस का आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सब लोगों को लगता था, किसी ने अवेयर किया नहीं था ना, कुछ अवेयरनेस नहीं था, सबसे बड़ा। अरे ना, पड़ोस के वो अग्रवाल जी के बेटे सारे मैथ साइंस लेके घूमते थे, तो वो उस चक्कर में कौन सा वो अग्रवाल थे? बगल वाले अग्रवाल जी के बेटे नहीं होते, शर्मा जी के बेटे होते हैं बाय द वे। गुप्ता और उधर सामने शर्मा, मैं फंस जाती थी। शर्मा जी के बेटे होते हैं अग्रवाल। एक कॉमन क्वेश्चन, हम लोग सब लोग साइबर सिक्योरिटी से हैं, बच्चों की आवाज जोर से आ रही है क्या यहाँ पर? नहीं, मेरे पीछे वाले बच्चों, तेरी काफी है, बाकी बच्चों को हम सुने नहीं रहे। One kid is enough. Yes. So हम चारों का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो बोलना है सब कुछ साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। सो व्हाई यू चूज साइबर सिक्योरिटी? इतने सारे डोमेन, जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। साइबर सिक्योरिटी अभी अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी नीश है। अभी करंट की बात करें, करंट सिचुएशन की, तो भी बहुत सारे लोग जस्ट लाइक कॉलेज से पास आउट होके या स्कूल से निकलने के बाद कोई सोचता नहीं है डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी की। सो हाउ यू हर्ड अबाउट साइबर सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू चूज साइबर सिक्योरिटी? तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी मेरे कुछ सीनियर्स फैकल्टीज थे, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, IIIT से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से मास्टर्स कर रखी थी, तो उनसे डिस्कशन होती थी। तब मुझे पता चला कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक स्ट्रीम है फ्यूचर बनाने के लिए। तो उसके बाद मैंने IIIT का जो एंट्रेंस हुआ वो दिया, फिर वहाँ पे जो डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो फील्ड्स थी वो पता चली कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और क्या क्या है, केवल एथिकल हैकिंग या कंप्लायंस नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तब वहां से मुझे पता चला कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कई सारी स्ट्रीम है जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो वहीं से आपको लगा कि सिक्योरिटी ही अच्छा रहेगा, और आपको जॉब भी पहले से ही कॉलेज से आपने स्टार्ट करी साइबर में सीधा? हाँ, मेरी जो पहली जॉब थी वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही थी और उसी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। नाइस नाइस। व्हाट अबाउट यू मनप्रीत? सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो सबको कॉलेज में कैसा एक शौक होता है कि यार हम लोग हैकिंग करेंगे। सो मतलब इट वाज कल्चर काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे लोगों को लगता था कि हैकिंग करना इज अ कूल थिंग। And there was a workshop in my college, तो मैंने वो workshop join की and it was completely a phishing। उन्होंने बहुत अच्छे से phishing समझाई थी हमें। तो और हम लोग को उन्होंने बता दिया था कि phishing के पेज हमें दे दिए थे कि ये यहाँ जहाँ पे फ्री होस्ट करो और everything। So they told us give a complete package कि हाँ ये सब ये स्टेप करो, you can hack the whatever you want। तो वो हमेशा से शौक था being so every college person want to be cool। So I started that and I tried not to disclose, but I tried to using that phishing and I got succeed in those phishing attacks. उसके बाद so I mentioned it as in my resume। जब फाइनल ईयर का मेरा प्लेसमेंट का इंटरव्यू हो रहा था तो रिज्यूमे में एक नीचे से मैंने एक लिखा था I did a ethical hacking workshop। तो मेरे रिक्रूटर ने उसको सर्कल लगा के एंड ही वाज लुकिंग फॉर only one candidate from our college to get into cyber security and he circled that and cyber security happened। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 1-2 दिन की वर्कशॉप करते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए, वो बहुत काम आती है। नहीं, हाँ, मतलब मेरे लिए एटलीस्ट बेनिफिशियल हुआ है वो 2 दिन की ट्रेनिंग। मतलब खाली एक जस्ट मेंशन किया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इनटू electronics and communication and but वो 1-2 लाइन changed my complete life। Nice, but that's interesting to hear your starting story। Yes Kritika, how about you? कैसे साइबर सिक्योरिटी को चूज करा संस्कृत छोड़ के? So that must be the most interesting now। Yeah। And if she better tell the truth because I know the truth behind this। You know that, so why don't you only tell? No,
No, people want to know from your mouth. Okay, so see, Sanskrit was out of picture already. After that, from electronics, it was like in college. What used to happen? No, you have this 50 marks allocated for all the semesters, so you have to do something extra. Like maybe you join a club, do something, right? So. And being a day ski, you just had to go anywhere, like in any of the club. You cannot just go back to your hostel and rest, right? So I had to pick and choose. So I tried all the clubs almost, which were running in our college. And most of them were like, college वाले देखेंगे ना ये अच्छे थे सारे क्लब बहुत अच्छे थे. तो उसमें से एक का आर्टिकल हैकिंग का शुरू किया था. तो I got like the hacking word itself is a kind of get attracted to it. It gives you some kind of fascination. So I started at that time. I was like, okay, fine. It was fun part only. Then during placement, some companies came. They rejected me. The cyber one rejected me actually. There was just one company which came, and after that I started looking out ऐसे अपने आप से दिखने का कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. Got it, and then. See, basically what happens, other kind of field, it will become kind of monotonous. But in cyber, things keeps on changing. So, that's the part that is keeping me here. No, so there is something, we lacked with. So, you talked about you got rejected. Then how did you get into the cyber security after that? No, so what used to happen in college, there was just one company which came, which was related to cyber. Otherwise, all of them are like general, like TCS, Cognizant, and all that shit. So I was thinking कि अगर उसमें हो जाएगा तो that would be a good start, right? You don't have to go ahead and look for yourself कि क्या करना है क्या नहीं करना. जब उसने reject कर दिया तो ऐसे ठीक है तुम्हारा घाटा मेरा क्या, इसमें तेरा घाटा मेरा नहीं जाता. अरे कृतिका उस कंपनी का नाम भी बता दो. बता दो क्या? उसे not name any company. निक तो उठाया था उन लोगों ने. आज उस कंपनी को पता चलेगा ना उसने कितना घाटा हुआ. नहीं एक्चुअली में सच में फायदा हुआ है. लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर वीडियो. सो दोस्तों कैसा लगा आपको पहला पार्ट? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पार्ट 2 इज कमिंग वेरी सून. थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा. एंड if you like this video, do share it with someone, and if you have some feedbacks, do let us know and reach out to us. Thank you so much, and stay tuned for the next part. Thank you so much.